Assalamualaikum everyone. This is Juwaria Azhar Sayed from KTH Securities. I'm working here as an investment analyst, and today I'll be your host for the evening. Today we're gathered here for the corporate briefing session of MacSec Films Limited. And joining us from MacSec, we have the CEO Najmul Hassan, who's a member of ICMAP and brings over 25 years of experience to the table. We also have Mr. Maniza Qasim, the group CFO, Mr. Ehtisham Maqbool Ilahi, MD of MacPac, Mr. Faisal Panawala, CFO MacPac, and we're also joined by Mr. Naveed Wakil, MD of Broking at K-Trade. Over to you, Mr. Faisal Panawala. Okay. Assalamualaikum everyone. So let's begin with our corporate briefing session presentation for our quarter ended March 31st, 2024. Sorry. Disclaimer. Today our agenda is to have a company overview, discuss our key drivers and business overview, and have an outlook and to discuss and present our outlook, and then we'll have a Q&A session at the end. So, company overview. The history of MacPac started with Maqbool Ilahi Sheikh, who is considered and is the pioneer of BOPP and CP in Pakistan, who incorporated the MacPac Films in 1993. And this is our journey. In 1993, we incorporated, commenced production in 95, then we introduced CPP Films in 2003. Our listing at PSX was in 2004. Then we had a second BOPP line installed in 2005. Then we had Mertilize installed in 2014. Then we had a right issue, and in 2019 we had CP plant installed again. And this year we have also mentioned previously in our direct report that we will be going live on SAP, and we have from January onwards we are on SAP, and our digital transformation has completed. This is our leadership, board, management, and corporate information. So this is our product type. We deal in BOPP, CPP, and bioproducts. The main types of film which we deal in is plain, sealable, metallized, pearlized, matte, and white. Our packing solutions are for following industries: chips, biscuits, and stationery, soap, tea, textile, mouthwash and pharmaceuticals, lamination sheets. And this is the chart which shows the main raw material ingredient which we use in our BOPP and CP production, homopolymer. And you can see from the chart that there is a hump last year, but alhamdulillah, this year the prices have been stable due to international downturn in the economy. Further, we have parallel analysis with the crude oil, because this product homocopolymer is directly and parallelly linked with our homo prices. So crude prices are very essential. We keep a very good eye on crude oil prices to gauge our prices for homopolymer. So comparatively, the prices have kept stable this year. This is the dollar parity. As you can see, that dollar has been stable in the last three months, and we expect that thoda sa dollar or shayad niche jaye, and there will be a stability in the economy, hopefully. So these are financial highlights. Our revenue is around 4.2 billion for the 9 months. Our profitability is around 244. Our EPS is 4.12. This year, we were able to achieve exports of 32 million after a year-long wait. Our management, through their dedication and innovation, we can try to capture our export markets, and we did this time. And our market capitalization for 9 months, or the current market capitalization last day was yesterday, was 1.12 billion. Total permanent employees we have is 1.2. Total tax contribution we made during the 9 months is 104 million, which is around 1 billion. And total assets of the company are 4.65 billion.
These are our operational highlights. Our production has sustained, alhamdulillah, from year on year, and our sales also represent the same. This is the glance of our financial performance. 9 month. This is a 9 month representation of last 5 years. So, alhamdulillah, you can see a growth trajectory of the company from sales revenue to shareholders' equity, gross profit, and net profit as well. These are the key ratios from 9 months performance. Current ratio, quick ratio, alhamdulillah, we have sustained and even increased our current ratio, and our cash to asset and cash to current liability is 5 to 6%. These are PBT per share to stock prices. This chart is to show that our profit before tax per share has increased significantly over the 6 years, but our share price hasn't picked up. So I'll ask our CEO to elaborate further on this, because we were discussing last night कि इस पे एक थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस होना चाहिए. We also discussed Yes, sir. the 65,000 market talking about 65,000 are discussing. Anyway, thank you very much, Faisal, and thank you everyone for joining us for this investor briefing. So just to Faisal, just our CFO just described, I'll give you a little bit highlight on that number as well once again. So I mean, this 9 months in this quarter was actually a very challenging period for the Pakistan. Reason being that if the purchasing power of the people of Pakistan, due to various reasons, which are saying, dollar parity and slow economic growth की वजह से the purchasing power of the people of Pakistan was badly affected during that period. Though we are seeing some sort of political stability and other stability, but still, जो inflation का number, inflation was 31%, which was last in February 2023. So gradually नीचे जरूर आई, but still is affecting the masses of the country. And are with the masses, and again, this basically affect your masses को करी, that's also affected the FMCG's growth, that's affected each and every area of the industry and the economy as well. And we also be the part of that economy, हम भी उससे affected हो गए. And if you see the result of the other companies and other the industry which is related to our industry, you see the pressure which every company and every industry is facing right now. Prices which are नीचे आई है ना, this basically shows the economic global recession as well. It is not that कोई supplies या position आ रही है, but economic recession and economic recession का जो impact है वो आपकी हर चीज पर पड़ रहा है. Because आपकी export जो है वो भी इतनी बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पर demand का international demand का issue है. दूसरी कंपनी जो दूसरी countries हैं उनकी वो बहुत ज्यादा competitive rates में ऑफर करने लगती है. It's always a challenge in this global recession period कि आप export भी कर सकें. But alhamdulillah, we not only started our export, but I think Pakistan में बहुत कम companies हैं जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं. And alhamdulillah we are doing that, which basically shows the quality, हमारी quality assurance and हमारी company के ऊपर दूसरा बटन है. We are continuously getting the pre-ordering from those countries. इसके अलावा हमारी जो डिफरेंट में अगर अपने बात करें जो हम यहाँ लोकल चीज को सप्लाई कर रहे हैं और वो हमारी प्रोडक्ट को हमारी फिल्म को यूज करते हुए उसको कन्वर्ट करके 20 डिफरेंट कंट्रीज को हमारी फिल्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो रही है, व्हिच शोस द बेसिकली क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर. सो ग्लोबल रिसेक्शन के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज किए ना सिर्फ इतनी कंट्रीज में अपना फुटप्रिंट ऐड कर सके, बट नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को भी टारगेट कर सके. अच्छा, सेकेंडली अगर हम इसी नंबर को देखें तो जब ये जो परचेसिंग पावर जो ग्लोबल रिसेशन की भी बात कर रहे हैं और हम लोकल की भी बात कर रहे हैं, इससे हमारी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट जहाँ पर परचेसिंग पावर इफेक्ट है तो हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट जो वहाँ यूज होती है फिर इन्फ्लेशन जिसको हमने पिछली दफा डिस्कस किया था उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है. बिकॉज नाउ प्राइसेस अपने बॉटम पर आए तो अब एवरी जो हमारा एंड यूजर है जो जिनके प्रोडक्ट्स है वो इस वक्त इन्फ्लेशन पे, व्हिच मींस अपना प्रोडक्ट का साइज छोटा करते चल रहे हैं. जब प्रोडक्ट का साइज छोटा हो रहा है तो which means the packaging size is also shrinking, which is called shrinkflation. So that's the basically but still ये challenges हैं. We personally as a Macpac management कि जहाँ भी challenges हैं वहीं पर हमारे लिए opportunities भी मौजूद हैं. इंशाल्लाह ताला यहाँ पर ये opportunity ही है कि despite of all these things हम export करने पे हो सके. हमें लोकल मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फुटप्रिंट एक्सपोर्ट की तरफ से बढ़ता चला जाए, बल्कि वी आर टारगेटिंग हम बाय द एंड ऑफ इंशाल्लाह ताला आई मीन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स हम 20% एक्सपोर्ट को अपने टारगेट कर सके.
So again, यहाँ पर भी हमें challenges जिसको हम आगे जाके discuss करेंगे because of the export competitiveness due to energy prices in Pakistan and other factors. But alhamdulillah, we are trying our best. इस पे this is basically you can see from the results as well. Because I mean, without highlighting the other companies, if you see the industry results, इस क्वार्टर में हमारी बहुत सारी कंपनीज ने तो चले नेगेटिव रिजल्ट्स दिए, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज के भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आए, बट अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल मैन्युफैक्चर का कल आप लोगों ने रिजल्ट देखा भी होगा, alhamdulillah still in profits, still in good GPs, still in net profits, still in is everything is alhamdulillah is still despite of all challenges, despite of slightly lower dispatches, which I will share with the reasons as well, it is still in decent profit. Which shows कि जो हमने पिछले 3-4 साल में मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह वो इस प्रेशर टाइम में भी पे ऑफ कर रही है. So मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इससे आगे भी जाते तो आप लास्ट ईयर के बिजनेस में जाओ. फिर भी बिजनेस आ रहा है तो बैड इससे पीछे देखो कुछ. So yeah, अगर आप यहाँ पर की बिजनेस हाइलाइट्स की पोजीशन में अगर आप देखें तो आपको हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो 244 मिलियन की नजर आ रही है, इसमें आप इसको क्वार्टर में भी देखेंगे तो मतलब वी आर इन प्रॉफिट एंड ईपीएस इज 4.12. अच्छा, जो ईपीएस 4.12 इसमें एक इफेक्ट और भी शामिल है, व्हिच इज के लास्ट ईयर द टैक्स वाज 33%, व्हिच वाज बेसिकली 4% आपका सुपर टैक्स एंड 29% वाज द कॉर्पोरेट टैक्स. And it's right now is 39%. It's 10% super tax and 29% of a corporate tax because of 500 million के bracket में आ रहे तो उससे 10%. Right now हम despite all other चीजें अपनी जगह but हम उसके बावजूद भी हमारा जो taxation है that is also increased by 6%. And another major component जिसने इस साल हमारी profitability को if you compare with the last year जो थोड़ा सा affect किया, and that is basically the utility energy prices. Last year the energy prices were 1200. And right now is 2750. It's almost 130% increase. And if you see हमारे जो अगर आप 9 months का नंबर देखेंगे ना, 9 month के रिजल्ट्स कल आए हैं, आप सबने मेरे सब माशाल्लाह रिसर्च है और उन्होंने नंबर्स भी देखे होंगे, तो जो टोटल जीपी में जो इम्पैक्ट आ रहा है दैट इज 140 मिलियन का इम्पैक्ट आ रहा है जीपी में. एंड सिर्फ अगर जब आपको इसकी डिटेल भी आएगी आप उसमें भी देखिएगा, लेकिन जो एनर्जी का खाली इम्पैक्ट है दैट इज मोर देन दैट. खाली एनर्जी इम्पैक्ट इज 9 months is more than 114 million जो कि जीपी का इम्पैक्ट. बेसिकली हमने ऑल जितनी भी कॉस्ट इंक्रीज हुई हमने सब अल्हम्दुलिल्लाह भी मैनेज टू रिकवर फ्रॉम द मार्केट, बट ऑब्वियसली एनर्जी का इतना सिग्निफिकेंट है फ्रॉम 1200 टू 2750 बिकॉज ऑफ द लोकल परचेस व्हिच आई आल्सो डिस्कस, वो पूरे का पूरा पास ऑन करना इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस, बट अल्हम्दुलिल्लाह भी मैनेज कि हमारा एनर्जी खाली सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कॉस्ट वाज मोर देन आर जीपी का जो डिफरेंशियल आ रहा है उससे. बाकी टैक्स अलग है, बाकी सब चीजें अलग है. अच्छा, हमने इसके बावजूद भी बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप सब अवेयर होंगे कुछ एक्सपेंशन भी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, एंड उसमें एक एक्सपेंशन जो रिसेंटली अनाउंस हो चुकी है, फंक्शनल हो चुकी है, एक रिसेंटली और होने वाली है हमारी ही अपनी इंडस्ट्री में. सो इस पे सप्लाईज का प्रेशर भी है. इस सप्लाईज के प्रेशर को हम सब पिछले एक साल से कर रहे हैं, जिसपे से हम अपने एक्सपोर्ट फुटप्रिंट बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं. बट ऑल्सो टू एड्रेस दिस इशू हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो शेयर होल्डर, हमारे जो स्टेक होल्डर्स जितने हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, सो हम उनकी ग्रोथ है. सो वी आर ट्राइंग, ठीक है, टॉप लाइन पर हमारे पास बिकॉज ऑफ द सप्लाई थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा, तो व्हाई नॉट वी वर्क ऑन द टॉप लाइन से नीचे अपनी कॉस्ट एफिशिएंसीज. So now we are completely working, very aggressively working on the cost efficiencies. We just implemented Alhamdulillah SAP, and I'm really happy to announce this कि हमने जो SAP किया वो I think मैं मेरे पास exact number तो नहीं, but I believe this is the fastest in Pakistan. Within 6 months Alhamdulillah हमने न सिर्फ SAP implement कर दिया बल्कि हम इसको optional live भी कर चुके हैं. And SAP, you know, is an expensive for me it's an expensive but it's an investment. Just a second. इससे अजान अजान ये मैं सिर्फ अजान की सिर्फ प्रोसेस अजान मुझे तो
जी। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि ऊपर की जो हमारे टॉप लाइन को बिकॉज ऑफ द मार्केट सप्लाईज जो थोड़ी सी तो ज्यादा है हमारे लिए इफेक्ट करना इतना आसान नहीं है, तो हम because the aim objective is profit maximization, which is the bottom line profitability. Our aim is to increase to manage the bottom line profitability. So for that purpose, we are working on the efficiencies, working production efficiencies. जो SAP की implementation है, alhamdulillah, which is right now इस पूरे उसमें वो as expense treat हुई है. Because वो इस साल expensive है, इंशाल्लाह उसका अगले साल से उसका feedback भी आना शुरू हो जाएगा. So वो हमने किया सिर्फ इसलिए कि हम अपनी वेस्टेज की एफिशिएंसीज, अपनी प्रोसेस की एफिशिएंसीज पे जाएं, अपनी वेस्टेज की एफिशिएंसीज पे, सप्लाई मैनेजमेंट की एफिशिएंसीज पे जाएं, बिकॉज़ कस्टमर यहाँ पर जो मौजूद है वो हमारी इनएफिशिएंसीज के लिए हमें पे नहीं करेगा. So we are working our best to reduce our जहां पर हमारी कोई इनएफिशिएंसी है हम उसको एड्रेस करें, ताकि अगर हम सप्लाई टॉप लाइन को नहीं भी कर सकते तो हम अपने बॉटम लाइन को इंश्योर करें कि वो जिस तरह से कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक प्रॉफिटेबिलिटी और एक नंबर देती हुई आ रही है, इंशाल्लाह ताला आगे अगले सालों में अगले आने वाले क्वार्टर्स में भी अपनी हमारी मैनेजमेंट पूरी एफर्ट है कि वही नंबर्स आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. सो अगर यहाँ पर आप आगे भी देखें टैक्स कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चर ने ड्यूरिंग दिस 9 मंथ इट्स मोर देन बिलियन रुपीस का टैक्स हमने ड्यू टू बिकॉज़ ऑफ द मैन्युफैक्चर हुआ है. इट्स इन द शेप ऑफ द सेल्स टैक्स एंड द शेप ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स एज वेल. सो इससे आगे जाइए. नंबर मोर और लेस देखिए अगर आप तो हमारे जो प्रोडक्शन के नंबर है उसमें कोई खास चेंज नहीं है, और ये नंबर इसलिए ज्यादा इसमें चेंज नहीं है कि हमने इसको लास्ट टाइम अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग में भी डिस्कस किया था कि वी आर वर्किंग ऑपरेशनली एट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो नंबर हमारी प्रोडक्ट मिक्स की वजह से चेंज हो जाता है. बिकॉज समटाइम हम एक अपनी थिक फिल्म से या कमोडिटी फिल्म से वैल्यू एडेड फिल्म पे चलते हैं, इसकी प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होती है बट उसके मार्जिन सेम होता है. सो वो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन का नंबर चेंज हो सकता है, बट कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ सकता. बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह सिंस लास्ट 3-4 इयर्स वी आर वर्किंग ऑन a 100% capacity utilization. Dispatch number is again more or less, if you see the sales dispatch number is actually the sales number which is more or less is same as 100 tons का अगर आप देखें तो difference नजर आ रहा है, but 100 tons is the case because of the value added films and different. Because of जो value added films करते हैं ना, which is actually the thin film, उसके अंदर हमारा मार्जिन कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है, बट एक्चुअली इसकी प्रोडक्शन स्लो होती है. बट स्टिल तो स्लो प्रोडक्शन के बावजूद भी स्टिल फार बेटर के जो कमोडिटी फिल्म है उसकी ज्यादा प्रोडक्शन से भी बेहतर है. तो ये लेकिन हम हमारी पूरी कोशिश है कि हम ग्रेजुअली अपने आप को कमोडिटी फिल्म से मूव करें टुवर्ड्स द वैल्यू एडेड फिल्म. सो वो आपको हो सके स्लाइटली उसमें डिस्पैच एंड सेल्स नंबर नीचे नजर आपको नजर जरूर आएगा, बट इंशाल्लाह ताला इससे सर इट्स अ स्ट्रेटजी फ्रॉम द मैनेजमेंट की अगेन नंबर वहां से 100-200 टन कम जरूर हो जाए, मगर बॉटम लाइन प्रॉफिटेबली हम किसी वैल्यू एडेड फिल्म से ले सकते हैं. व्हाई नॉट? ऑब्जेक्टिव इज द मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बॉटम लाइन. यस सर. सो अगर आप यहाँ पर भी देखिए, अच्छा इससे इंटरेस्टिंग ग्राफ्स यहाँ पर मैं आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस वन. हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स रेवेन्यू तो भी स्टिल हमने इंक्रीज किया है. हम 3.9 बिलियन से हम सेम पीरियड पे हम 4.26 बिलियन तक पहुंच गए. हमारा 880 मिलियन से 765 मिलियन पे हम आए, which is actually the drop of 114 million, which I just discussed कि हमारा खाली जो एनर्जी की प्राइस का जो डिफरेंस है it was more than that. एनर्जी की प्राइस का इफेक्ट अलग, इन्फ्लेशन इफेक्ट अलग, जो आपका पेट्रोल इससे रिलेटेड जो इफेक्ट है दैट सेपरेट, आपका परचेजिंग पावर का सेपरेट. हमने सैप अल्हम्दुलिल्लाह इंप्लीमेंट किया व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव, व्हिच इस साल में हमने इस कॉस्ट को भी अपने इस कॉस्ट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी अपने अंदर एब्सॉर्ब किया. बट स्टिल जो डिफरेंस आ रहा था 200-250-300 मिलियन का, स्टिल हम वी मैनेज कि हम 200-250 की जगह 114 मिलियन की हमने इसके ऊपर स्क्वायर. बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से भी मैनेज टू रिकवर फ्रॉम द मार्केट. Total assets is on increasing side. Cost of sale is again बढ़ी है, लेकिन cost of sale के मैंने भी आपसे रीजन शेयर किया because of the energy prices, because of the SAP and all these things, because of the inflation number. Net profit हमारा क्या हुआ? नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो हमारा नेट प्रॉफिट का हुआ 58 मिलियन से 58.6 मिलियन से, जो कि इस ग्राफ में नजर आ रहा है. बट अगेन 58.6 मिलियन में जो ऊपर जीपी का नंबर वहां से तो ट्रांसलेट हो ही हो रहा है, बट इसमें एक नंबर फिर और ऐड हो जाते हैं नीचे आके, which is 6% of the increase in taxation, in super tax, जो 6% फर्दर इंक्रीज उसने आके नीचे कोरेक्ट किया. बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अदर इनकम का भी एक एलिमेंट है, या इसमें जो थोड़ा सा एक्सचेंज गेन ने भी सपोर्ट किया, तो वो 114 से बढ़ा नहीं है, वो अंदर 114 से 58 मिलियन पे रिड्यूस किया. शेयर होल्डर इक्विटी आई एम रियली हैप्पी कि वो बाकी इंडस्ट्री के रिजल्ट्स अगर आप देखें तो अल्लाह का शुक्र है इस क्वार्टर में भी शेयर होल्डर इक्विटी प्लस में है.
करंट रेशियो अगर हम, अच्छा सॉरी ये उल्टा है, करंट रेशियो सब हो सकता है 0.93 से 0.8 टाइम कैसे हुए, करंट रेशियो तो बेहतर, इस करंट रेशियो अल्हम्दुलिल्लाह 1.18, इट्स अ वेरी हेल्दी। आप 21 देखें, आप 22 देखें, फिर 23 देखें, 24 देखें, कंटिन्यूअसली अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीजिंग सब ट्रेंड पर, व्हिच शोज कि हमारे सारी करंट लायबिलिटीज देने के बावजूद भी, इमीडिएट बेसिस पे देने के बावजूद भी वी आर इन प्लस। क्विक रेशियो इज स्टिल, क्विक रेशियो का थोड़ा सा इफेक्ट हमारी ऑब्वियसली इन्वेंटरी मैनेजमेंट से भी है, सो वो नजर आता है, क्योंकि इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी हमें देखनी है, कई जगह पे हमें इन्वेंटरी बढ़ानी पड़ी। अभी रिसेंटली आप लोगों के सामने जो मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस आया है, जो पिछले 3-4-6 महीने से काफी ज्यादा एस्केलेट हुआ, और हमने यहाँ पर अपने इन्वेंटरी लेवल्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है। सो जब आप वो इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर आ रहा है, बट इट्स अगेन बाय डिजाइन, इट्स नॉट दैट हमें फोर्स किया, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी के कल को किसी खुदा ना करेगा थोड़ा सा भी प्रेरक होते हैं, तो हमने अपना जो स्टॉक लेवल है उसको इंक्रीज किया, तो हम पहले हम 1 महीने पे थे, फिर 1.5 पे, फिर 2 पे, हमने कोशिश की इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करें, ताकि इन केस, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कब आती है ये नहीं पता होता, हमें हर वक्त अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है, हमें अपने स्टेक होल्डर्स जितने भी, अपने शेयर होल्डर्स, अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए उस अपॉर्चुनिटी को, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आएगी और जाएगी, ये हमारे ऊपर है, उसको कैश कर सकते हैं, कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैक ने पिछले आप पीरियड पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाली अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश की, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आगे भी अपने वही कर रहे हैं। अच्छा, ये इससे वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड, अगर आप देखें तो हम एक जो पिछली एनालिस्ट ब्रीफिंग में भी डिस्कशन हुई थी, वाज दैट कि आपके शेयर की प्राइस नहीं बढ़ती। जी, अच्छा, इंटरेस्टिंग इनफ है, थोड़ा सा उसमें इंटरेस्टिंग इनफ है, अगर आप 2018 में देखें तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1.1 ओनली, शेयर प्राइस थी 29.6 रुपीस, एंड इस वक्त मोर और लेस दोनों सेम ही हो चुकी है, ऑब्वियसली इट्स नॉट सेम, बट ऑब्वियसली 11.8 अगर आप ग्राफ देखें तो बिल्कुल बस मिल ही गए हैं, 15.7 इस मोर और लेस सेम हो चुकी है। टेक्निकली ऐसे शायद ही किसी और स्टॉक में ऐसा होगा, अगर मैं सेम रेशियो या 2021 का भी अगर मैं अप्लाई कर दूं, इवन मैं 2022 का भी अगर अप्लाई करूं, 4.4 से 15.7 विच मींस ऑलमोस्ट 4 टाइम्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 4 टाइम्स भी अगर मैं देखा जाए तो 44 रुपीस की इसकी प्राइस बनती है। सेकेंडली एक और फैक्टर अगर हम देखें, अगर हम ये तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी से, अगर हम इसको इंडस्ट्री से कंपेयर करने जाते हैं, एक हमारे पास इंडस्ट्री में अगेन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में प्लेयर्स नहीं है लिस्टेड, सो एक और जो हमारे इंडस्ट्री प्लेयर है उसकी अगर आप देखें तो जो उसका बुक वैल्यू है और उसकी जो प्राइस है, उसकी प्राइस जो मार्केट प्राइस है इज एक्चुअली 80% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, एंड मैकपैक इज अराउंड 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, which is actually shows कि ठीक है वो ये एक प्रॉब्लम अपनी जगह कि हमारी प्राइस उस तरह से इतनी बड़ी, बट दिस आल्सो शोज द पोटेंशियल कि हमारी प्राइस अगर इंडस्ट्री लेवल पर भी आती है तो स्टिल 30% से ज्यादा का तो पोटेंशियल यहाँ से मौजूद है, एंड 30% ऑब्वियसली 50% पर नहीं कह रहा मैं, 80% वाले नंबर पर कह रहा हूँ मैं, 100% वाले नंबर पे कह रहा हूँ, अगर मैं उसको 30 पे कन्वर्ट करूंगा तो 60% पोटेंशियल मौजूद है हमारे पास यहाँ से प्राइस इंक्रीज करने का। सो वही जब हमने बात की ना, जहाँ थ्रेट होता है अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इट्स अ थ्रेट या इट्स अ चैलेंज कि प्राइस हमारी 50% से ऊपर नहीं है, बट सेम अपॉर्चुनिटी है इस पर कि यहाँ से 60% की अपसाइड मौजूद है हमारी प्राइस। मैं इंडस्ट्री ट्रेड पर जाऊँ, मैं ईपीएस ट्रेड पर जाऊँ, मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स ट्रेड पर, मैं किसी भी ट्रेड पर जाऊँ तो 60% पोटेंशियल मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मौजूद है। We missed our आउटपुट ठीक, अच्छा आउटलुक है हमारा इसमें, ये हमने थोड़ा सा एक अपना फ्यूचर हमें किस तरह से नजर आ रहा है हम तो देख रहे हैं। अच्छा, होमोफोलिको जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर से थोड़ा सा रिमेन वीक टू स्टेबल है। अच्छा, रिमेन वीक टू स्टेबल होना इज सम टाइम इट इज ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी, बट ये सम टाइम प्रॉब्लम भी है, बिकॉज ये इसका मतलब ये एक सिग्नल दे रहा है व्हिच मींस कि ग्लोबली डिमांड कम है। नंबर 1, दिस इज अ क्लियर सिग्नल, अगर ग्लोबल डिमांड स्ट्रांग होगी तो ये प्राइसेस नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज रिमेंबर हमारी जो प्रोडक्ट है ये लाइफ के हर एरिया में, किचन से रिलेटेड हर जिंदगी के हर एरिया में ये यूज हो रही है। अगर ये इसका रॉ मटेरियल के ट्रेंड थोड़ा सा वीक हो रहा है, विच मींस के डिमांड साइड, विच मींस के जो एंड प्रोडक्ट साइड है वहां पर थोड़ा सा रिसेशन है,
So this is actually a sign कि थोड़ा सा रिसेशन इसमें ग्लोबल, और ये आप सब एनालिस्ट हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि ग्लोबली इस वक्त जो जितनी भी कंट्रीज हैं, वेदर इट्स यूरोप, अमेरिका, आई मीन दे आर फेसिंग आई मीन वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट्स नंबर वन, एंड वेरी रिड्यूस सॉर्ट ऑफ परचेजिंग पावर। यूरोप में भी अगर आप देखें तो वहां पर भी एनर्जी प्राइसेस लास्ट 1.5 ईयर में तो तकरीबन क्लोज टू 500% इंक्रीज हुई है। सो वहां पर भी परचेजिंग पावर का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क करके है। सो दिस शोज, बट ऑन द अदर साइड फ्रॉम पाकिस्तान इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली नाउ हम इसको बेहतर तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारी प्राइस थोड़ी सी जो एलसी लाइंस है वो ज्यादा बेहतर तरीके से यूज हो सकती है इसको इंपोर्ट करने। तो सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सॉर्ट ऑफ थ्रेट, बट अगेन हमने इसी थ्रेट को कन्वर्ट करना है अपनी अपॉर्चुनिटी में। दिस इज बेसिकली द गेम इज नॉट कि ये प्रॉब्लम है और ये अपॉर्चुनिटी है, गेम इज कि प्रॉब्लम भी है, ये अपॉर्चुनिटी भी है, कन्वर्ट कैसे करना है इसको, बस वो दोनों चीजें यहाँ मौजूद है। और हम इंशाल्लाह ताला जो सिर्फ हमारी अच्छी दोनों चीजें हमेशा पिछले 4 कोविड आया, थ्रेट भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, इंपोर्ट पर बैन लगा, थ्रेट भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, पाकिस्तान पे ग्रे लिस्ट का प्रॉब्लम आया, थ्रेट भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी। सो दोनों चीजें हर वक्त मौजूद है, हमने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है, कनेक्ट करना है कि वो चीज थ्रेट से निकल के हमारे पास अपॉर्चुनिटी पहुंचे। और अगले साल भी यही होना है, और इंशाल्लाह वी विल बी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम थ्रेट जो भी है उनको कन्वर्ट करें किसी तरह से अपनी अपॉर्चुनिटी। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू थोड़ा सा प्रेशर में होंगे, डेफिनेटली होंगे, बिकॉज इसमें लोकल जो सप्लाई इसमें इंक्रीज आ रहा है, जो कंपटीशन में ऐड हुई चीजें, सप्लाई ऐड हो रही है, एक उसका भी प्रेशर होगा क्योंकि सप्लाई थोड़ा सा डिमांड को क्रॉस कर रही होगी। सो उसका प्रेशर डेफिनेटली आएगा, एंड बिकॉज अगेन जो लोकल हमारी परचेसिंग पावर कम हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड एनर्जी प्राइसेस, उसका भी एक इफेक्ट होगा। बट स्टिल ये थ्रेट है, इसके साथ अपॉर्चुनिटी है कि हम सब इस वक्त वैल्यू एडेड साइड पर हम our company is continuously focused on R&D, different segments ढूंढी जाएं, different products हम देख रहे हैं जिसमें हम वैल्यू एडेड तरीके से जा सकते हैं, जिसमें हम ठीक है प्रोडक्ट कम हो जाए लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो। दिस शोज, हम जैसे भी आपसे डिस्पैच में कहा है कि हमारा डिस्पैच का नंबर थोड़ा स्लो है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी का कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकंडली अगर आप देखें तो हमारा एक्सपोर्ट नंबर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल और इंक्रीजिंग साइड पर आ रहा है। सो दिस इज द स्ट्रेटजी कि अपने आप को एक्सपोर्ट में कर सके, बिकॉज वहां पे इनडायरेक्टली पे अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। सो अपने आप को एक्सपोर्ट में बैन कर सके, अपने आप को यहाँ पर वैल्यू एडेड कर। और ये जो रेस एक होगी ना, या लोकल सप्लाईज की जो एक रेस होनी है कमोडिटी फिल्म्स की, वी जस्ट डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट रेस, वी जस्ट डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट वॉर की प्राइस कम करो और मार बेचो। हम यहाँ पर बिल्कुल भी ये काम नहीं करने को तैयार, बिकॉज प्राइस कम करके हमें अपनी प्रोडक्ट को सेल करना इज नॉट अ कमाल। सो कमाल इसके इसको कन्वर्ट करना है वैल्यू एडेड फिल्म में और उसको प्रॉफिट भी रखना है, और इंशाल्लाह ताला वी विल डू दैट। The biggest threat जो every industry is right now facing is the gas energy price. July जब start हुआ, June 30th the prices was 1200 MMBTU, which is now 2750, and कल एक नोटिफिकेशन हो रहा है जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऑब्वियसली वी आर इसको थोड़ा सा रिव्यू करें, बट माय अंडरस्टैंडिंग में स्लाइटली थोड़ा सा गैस में फर्दर इंक्रीज आ है। सो अगर आप ये बातें, अगर आप हमारे इवन 56 rupees is the huge, which is almost 20 cents. So ये बाहर इंटरनेशनली तो 20 cents की टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है, हमारे यहाँ सिर्फ एनर्जी की कॉस्ट भी ऑफ 20 cents। So इट्स अ बिग, सबसे जो हमें इस वक्त जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है दैट इज द एनर्जी। अगेन फॉर टू address this energy challenge, we are working number one on the value added films जहाँ पे पास मार्जिन हो ताकि हम इसको एड्रेस कर सके। नंबर टू, हम सोलर की तरफ भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हमने सोलर में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की भी है, और ऑब्वियसली वो उसके इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है हमने एनर्जी बिल को किसी तरह से रिड्यूस कर सके ताकि हम इंटरनेशनल, लोकल इज नॉट एन इशू, लोकल में जो एनर्जी प्राइस मिल रही है वो सबके लिए। सो वहां तो हम वैल्यू एडेड फिल्म से इंशाल्लाह ताला अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। चैलेंज हम यहाँ पर फेस होगा जब हमारा कंपटीशन जो है वो लोकल से हटके इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया ये बन जाती है, वहां पर उनकी जो एनर्जी प्राइसेस है वो हमसे कंपैरेटिवली काफी कम है, बट वहां पर भी हम अपनी वैल्यू, ठीक है कम मार्जिन है लेकिन अपनी वैल्यू एडेड फिल्म से वहां पर हम अपने मार्जिन को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उसमें हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट पे तो इंशाल्लाह बेनिफिट है ही है, लेकिन यहाँ पर जो लोकल सप्लाई जो बहुत ज्यादा ऐड होती चली जाएगी, वो भी जब एक्सपोर्ट में क्वांटिटी शिफ्ट होंगी तो यहाँ पर भी सप्लाईज का प्रेशर कम होगा, व्हिच मींस कि हम यहाँ पर भी थोड़ी सी प्राइसिंग को बेहतर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स एज आई जस्ट मेंशन कि अल्हम्दुलिल्लाह वी जस्ट आई एम रियली ग्लैड टू से कि अगर not the 6 month के अंदर not the fastest but one of the fastest हम जरूर रहे हैं within 6 months। I mean
All credit goes to MacPack entire team and the जो Supernova जो implement है SPF to the team. So हमने 6 month के अंदर अंदर हमने implement भी किया है, हमने live भी कर लिया और अल्लाह का शुक्र है उस पर अब हमारे results भी आना शुरू हो गए हैं, जो कि अगले अगले क्वार्टर्स में और अगले आने वाले साल में आपको नजर आएगा कि हम हमारी एफिशिएंसी लेवल उसके वजह से कितना मैक्सिमाइज कितना बेहतर होता चल रहा है। ऑब्जेक्टिव भी है इस साल अनफॉर्चुनेटली चूंकि इस साल अभी जस्ट लाइव हुआ है, सो हमारे पास वो सिर्फ एक्सपेंस में नजर आ रहा है, हमारा जो भी उसका एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में आपको नजर आए, बट अगले साल इस एक्सपेंस के साथ इसकी एफिशिएंसी की सूरत में इसका इनफ्लो भी नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह। यस, so this is the presentation from our side. Now I think आप लोग के जो भी क्वेश्चन आंसर please. The floor is up for questions. If you have any questions, you may put them in the chat box or you also say them out loud. Am I audible? Yes, you are. All right, the first question is from Talha Ganatra. He's asking why are the admin costs gone up from 144 million rupees to 230 million rupees in 9 months fiscal year 24? By 18, one from 140 to 30 million rupees, right? Yes. अच्छा, if you basically इसके पास आपके पास इंशाल्लाह detailed account की stock share पे publish होने हैं, but because of 2-3 main reasons. Number one is the inflationary impact on the almost जितने भी सेगमेंट्स है जिसमें हमारे आपके से एडमिन के आपने हेड देखे होंगे, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड हो, उसमें मौजूद है। इवन ऑडिट रेम्यूनरेशन जो कि लास्ट ईयर जनरल बॉडी ने अप्रूव किया था, दैट्स आल्सो 100% इंक्रीज वहां पर कि हमारे पास ऑलमोस्ट मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैवलिंग भी ऐड हुई है। ट्रैवलिंग ऐड होने का जो बेसिक रीजन है वो अगेन फुटप्रिंट्स अपने जितने हम जहाँ पर इंक्रीज करें वहां पर हमें सैम्पलिंग के लिए भी जा रहे हैं, हम एग्जीबिशन में भी जा रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज आवर फुटप्रिंट्स, एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स। जो आपको एक्सपोर्ट नजर आ रही है उसकी पाकिस्तान में इज नॉट पॉसिबल कि आप पाकिस्तान में रहें, वो सारे एक्सपोर्ट खुद का खुद आपके पास आती रहे, आपको थोड़ी सी उसके लिए एफर्ट करनी है। उसमें उस एफर्ट्स में हमने कोशिश की हम एग्जिबिट करें, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में अपने आप को एग्जिबिट करें, अपनी प्रोडक्ट को वहां पर शो करें, एग्जिबिट करवाएं, और उसका रिजल्ट जो है ना वो हमें मिलना शुरू हुआ इस क्वार्टर से। पाकिस्तान में फिर रिपीट करूंगा, बहुत कम कंपनी ऐसी है जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इन जगहों पे कर रही है, और हम लोग मैनेज टू एक्सपोर्ट दैट वन, इट्स द रिजल्ट ऑफ इट इज द ट्रैवलिंग कॉस्ट एज वेल। सो एक वो इम्पैक्ट है, प्लस इसमें सैप का जैसे अभी आई जस्ट मेंशन कि इसमें सैप का इम्पैक्ट इज आल्सो जो अगेन ये आज के दिन में ये एक्सपेंस है, इसे इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे पास एडमिन में आज एज एन एक्सपेंस मौजूद है। सो ये सारे इम्पैक्ट हैं जिसकी वजह से हमारी जो एडमिन कॉस्ट है, और ऑब्वियसली सैलरीज का जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है दैट्स आल्सो देयर। फिर सैप की वजह से टू एड्रेस द एफिशिएंसी हमने थोड़ी सी जो अपने हेड काउंट से नंबर ऑफ पीपल उनको भी मजीद प्रोफेशनल लोग अपने पास ऐड किए। जो ऐड करने का जो बेसिक रीजन है वो सारा ये कि आज वो अगेन ऐड करने के वो अपनी हमारी जो कंपनी की जो प्रोसेस की जो एफिशिएंसीज है उसके ऊपर काम कर सके, उसको एड्रेस कर सके, हम अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जा सकें। और जस्ट उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाने का मकसद भी ये कि हम इस वक्त टॉप लाइन से अगर कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे तो हम बॉटम लाइन पे भी प्रॉफिटेबिलिटी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि हमारा मेन हेड है वहां पर काम करके उसको एड्रेस कर सके। सो जब आप कोई भी हायरिंग करें, चाहे आप कोई भी सैलरीज में करें, चाहे आप कोई भी स्टाफ करें, चाहे आप कोई भी फ्यूल करें, चाहे आप कोई भी इन्फ्लेशनरी करें, चाहे आप कोई भी ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग आज भी जिसका रिजल्ट आना शुरू हुआ वो रिजल्ट में भी कम आया, लेकिन वो ग्रेजुअली हर क्वार्टर में आपको नजर आ रहा होगा, तो वो आज आपको एक्सपेंस बड़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन जब 4 क्वार्टर में डायल्यूट होगा तो एक्सपेंस कम रहा। सो आज इस क्वार्टर में आपको इसलिए वो ज्यादा नजर आ रहा होगा, और अगर आप इसको भी क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट, क्योंकि क्वार्टर हम 9 मंथ के पीछे भी पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर अगर मैं देखता हूं तो हमारे एडमिन एक्सपेंसेस एक्चुअली बड़े अराउंड 30 मिलियन, एंड इस 30 मिलियन में भी अगर मैं मेनली जाता हूं तो इसमें जो मैंने भी आपसे जिक्र किया ऑडिट फी है, ट्रैवलिंग है एंड स्टाफ है, वो तीनों इस क्वार्टर में शामिल है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट नजर आता है। लेकिन ये अगले क्वार्टर में जाके डाइल्यूट होकर प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। एंड किसी भी ना रेवेन्यू को आपने ना हर इंडस्ट्री लगाई है कि आप फ्यूचर में 10 साल प्रॉफिट करना चाहते हैं,
हमें पिछले 2 क्वार्टर से नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम हमें आने वाली, तो हमने वो एक्सपेंस चाहे वो सैप में कर रहे हैं, चाहे हम वो ह्यूमन रिसोर्स में कर रहे हैं, चाहे वो एग्जीबिशन इंटरनेशनल एग्जीबिशन में कर रहे हैं, वो एक्सपेंस हम कर रहे हैं। बट दिस इज एक्सपेंस फॉर द बुक्स पर्पस, फॉर अस इज एन इन्वेस्टमेंट। हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगले कई क्वार्टर्स के अंदर उसका पेबैक। तो आपको आज ज्यादा नजर आए, इंशाल्लाह ताला अगले क्वार्टर में बात कर रहे होगी तो इसका आपको पेबैक की नजर आनी शुरू हो जाए। Sure. The next question is from Talha again. Does company prices its local product in USD terms, and are the contract prices locked in beforehand? Contract prices, obviously, I tell you the local prices, अगर बात करें डॉलर टर्म्स, is slightly on the downwards side because of the supply pressure, as I just mentioned, because of the supply pressure. बट इस वक्त मैथ पैक आई एम नॉट, मैं ये तो खैर नहीं कहूँगा कि शायद सबसे बेस्ट है, लेकिन हम इस वक्त भी औरों के मुकाबले बहुत बेहतर प्राइस अपनी मैनेज कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई हम जो कॉस्ट में ऐड हो रहा है वो भी हम मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज टू रिकवर, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी ऑफ दैट। बट हम इस वक्त अगर आप ये कहें कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यस देयर इज अ प्रेशर, बिकॉज यू नो प्रेशर खाली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो डिमांड नहीं है, डिमांड के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज सप्लाईज की भी आ जाती है। जब आपकी सप्लाई प्राइस आप चार्ज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास सप्लाईज कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर हो जाती है तो आपके लिए थोड़ा सा एक चैलेंज होता है। फिर आपकी बेहतर स्ट्रैटेजी हो प्राइसिंग से हटके आपकी बेहतर स्ट्रैटेजी हो जाती है वो आपकी कॉस्ट और प्रोसेस एफिशिएंसी पर है। मैं कंटिन्यूसली मैंने अपनी उसमें पूरी डिस्कशन में यही कहा है कि हमारे लिए जो टॉप लाइन है वो एक चैलेंज है, बिकॉज हम टॉप लाइन पे अपनी मैनेजिंग पर बिकॉज ऑफ द सप्लाई प्रेशर, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन हम अपनी प्राइसेस उस तरह से नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, नहीं बढ़ा सकते, देन इज फाइन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी? द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज work on the process efficiency. Issue or the objective is not the price only. Objective is what again I'm saying the profitability. ठीक है, अगर प्राइस नहीं बढ़ा सकते then what's next? We are working on efficiency. We will inshallah ताला try to our best कि हम उस profitability को ensure करें, हम जैसे भी कर सकते। Yes. The next question is from Ahmed Sarfaraz. He's asking how much of raw material component is imported and from where it's imported, and also can you please elaborate on your company dividend strategy? देखिए जी, रॉ मटेरियल की तरफ बात करें तो इट्स कंप्लीटली 100% नहीं, बात एक एक्चुअली आईसीआई ने थोड़ा सा कुछ रेट शुरू किए हैं। सो रॉ मटेरियल्स एक्चुअली पहले अगर 100 था तो अब 90% इज इंपोर्ट बेस्ड। एंड इस 90% के मैं आपसे बात करूं तो मेनली जो इसका जो मेन कंपोनेंट है जो विच 90% का ऑलमोस्ट 70-80% इट कम्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट साइड से आता है, एंड द रेस्ट इज फ्रॉम द यूरोप एंड अदर कंट्रीज। एंड जो सेकंड आपका था डिविडेंड स्ट्रैटेजी, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिविडेंड स्ट्रैटेजी बैकपैक ने जब भी अर्निंग की है इसकी हिस्ट्री है, आई एम टॉकिंग पिछले 7-8-9 साल से भी अगर आप पीछे चले जाएं तो जब भी बैकपैक ने प्रॉफिट किया है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। बट यस, हमारे सामने हमने अपने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी देखने हैं, और उन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के साथ बिकॉज आगे चैलेंजेस जो मैंने आपसे कहा कि चैलेंजेस हैं, और लेकिन मैं आपके साथ देखूंगा कि उसी चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। हमें यहाँ से हम कन्वर्ट करने के लिए जो बीच में अपॉर्चुनिटीज में जो हमें एक्सपेंस करना होगा, जो इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी, जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने होंगे, वो ग्रोथ सामने रखते हुए डिविडेंड की स्ट्रैटेजी होगी। हमने हमेशा अपने आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने को प्रेफर किया, आइंदा भी करेंगे। बट यस, साथ ही साथ ग्रोथ को भी बैलेंस करें, बिकॉज ग्रोथ के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होंगे बैंक से, देखिए बैंक से ग्रोथ के लिए ना फाइनेंसिंग लेना इज नॉट अ डिफिकल्ट कॉल। बट 24% पे क्या इज इट राइट स्ट्रैटेजी कि मैं 24% पे लेता रहूं पे? सो हमने उसको बैलेंस क्रिएट करने जो पहले भी किया, आइंदा भी करेंगे। कितना ग्रोथ के लिए कैपिटल जाएगा और कितना डिविडेंड के लिए जाएगा, वो इंशाल्लाह ताला एनुअल भी आएगा तो फिर हम उस पे कर रहे हैं। बोर्ड उसको एटलीस्ट डिस्कस करेगा, जो भी डिसीजन होगा उससे स्टॉक चेंज कर देगा। What is the company's current energy mix, and is there any update on the 1 megawatt solar? इस वक्त कंपनी जो इस कैप्टिव पावर पे इट्स कंप्लीटली गैस बेस्ड 100%। सो सोलर पे हम कन्वर्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला बाय आई थिंक प्राइसेस आर देयर इंशाल्लाह ताला बाय फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट फिस्कल ईयर इंशाल्लाह। Next question is from Salim Sami of Progress Capital. Do you think the company should be diversifying its product mix since the current market is oversupplied, for example, entering the polyethylene market or paper packaging market? I completely agree with you.
And honestly speaking, we are very aggressively working on that. But मैंने पूरी presentation में आपको यही कहा कि हम उस commodity race में अपने आप को डाल ही रहे। हम continuously saying कि हम value added film की तरफ, कुछ चीजें ऐसी जो मैं भी शायद इस टाइम पर explain नहीं भी कर सकता, but हम इस वक्त हमारा पूरा focus है value। इस रेस में हमने नहीं पढ़ना, because जितने भी फिल्म्स आ रहे, जितने भी फिल्म मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, that's actually इनकी अगर आप कमोडिटी मेनली कमोडिटी फिल्म्स में, लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी लेवल होगा, इनकी जो कॉस्ट होगी वो डेफिनेटली कम होगी। सो हम हमारा पूरा, लेकिन हमें कुछ एज हमें हासिल है, कुछ एज हमारे पास है, हमारी अपनी लाइन में कुछ इस किस्म के एज हैं जो इंशाल्लाह ताला हम वैल्यू एडेड फिल्म की तरफ बहुत बेहतर तरीके से जा सकते हैं। वी आर कंटिन्यू, अगर हमारा मैं अपने ट्रेंड की बात करूं तो हमारे ट्रेंड के अंदर जो वैल्यू एडेड फिल्म का मिक्स है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स कंटिन्यूअसली ऑन द इंक्रीजिंग साइड, कंटिन्यूअसली अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द इंक्रीजिंग साइड। एंड द ऑब्जेक्टिव टारगेट है भी है कि हमने अपनी कमोडिटी फिल्म को टारगेट अप कर ही नहीं है। जिस मार्केट में जो कंपटीशन आ रहे हैं, हमने उस मार्केट को, ऑब्वियसली इस मार्केट में हम रहेंगे इंशाल्लाह, मगर टारगेट इज नॉट दैट मार्केट, टारगेट इज द वैल्यू एडेड मार्केट। और उसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन पर भी हम पूरी मैनेजमेंट जो इस समय आप इस वक्त एवरी नॉट अपडेट ऑफ एवरी सेकंड इसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि हम अपॉर्चुनिटीज पता है दुनिया में बहुत सारी है, हमने सिर्फ ये कैच करना है कि हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज की कैच करने की। तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर इंशाल्लाह ताला। अब तक आपके सामने मैकपैक ने अपने रिजल्ट्स में, अगर आप पिछले 4 साल को देखें तो लीड किया है, और बड़े मैसिव सिग्निफिकेंट मार्जिन से लीड किया, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी करें। वो होगा ही डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज एंड प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज। वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन दैट। Next question is from Akshay Thakur from Alpula AMC. What is the market size for BOPP and CPP films, and what are the volumes expected in the next year? What was your volume in first quarter fiscal year 24, and what's your outlook going forward? देखिए, इसमें ना हमारी मार्केट में अनलिस्टेड जिनका डेटा अवेलेबल है वो भी बहुत सारे मौजूद हैं, नंबर वन। सो अगर मैं आपसे बीओपीपी मार्केट की बात करूं तो इट्स मोर देन 100,000 मेट्रिक टन्स का नंबर है, 120,000 मेट्रिक टन्स का नंबर है। सो आगे ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग है जरूर, बट इसमें ग्रोथ इंशाल्लाह ताला यू विल सी अ डिसेंट ग्रोथ, बिकॉज़ कुछ जो इंडिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान की इकोनॉमी के, वो काफी पॉजिटिव होना शुरू हो। आपका यूएस डॉलर रेट्स की अगर आप बात करें तो इट्स वेरी वेरी स्टेबल, व्हिच एक्चुअली आपके इन्फ्लेशन को एड्रेस करता है। इन्फ्लेशन आपका जब एड्रेस होता है तो ऑब्वियसली हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें आगे से डिस्काउंट रेट्स नीचे की तरफ जाना शुरू हो। डिस्काउंट रेट नीचे की तरफ जाता है तो इससे इससे आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वो इंक्रीज होती है, आपका जो कैश इन द मार्केट सर्कुलेशन है दैट्स इंक्रीज। जब वो इंक्रीज होता है तो हम डायरेक्टली उससे पॉजिटिव ग्रोथ में चले जाते हैं। सो इनिशियली हम आज से 1 साल 1.5 साल पीछे, 2 साल पीछे चले गए तो हम 17-18% की ग्रोथ में मौजूद थी, जो कि इस वक्त बहुत नीचे आ गई। बट माय पर्सनल एक्सपेक्टेशन कि ये इंडस्ट्री दोबारा से इन नेक्स्ट 6 मंथ में या 8 मंथ में दोबारा उसी पैटर्न पे ग्रो करना शुरू करेगी, बिकॉज पाकिस्तान में एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान में ना अभी कोई काम हमारी जो प्रोडक्ट रिलेटेड वो काम हुआ ही नहीं है। मैं अगर आपसे बात करूं पाकिस्तान में प्लास्टिक की जो कंजम्पशन है, अगर मैं उसकी आपसे करूं तो इट्स अ रफ नंबर, बट डेवलपिंग कंट्रीज में इज 35 kg per person and in Pakistan is 7 kg per person. सो मैं अगर 100% जो कैपेसिटी आ रही है उसको 100% भी मैं यूटिलाइज कर दूं तो हम 14% पे पहुंच जाएंगे। सो इशू नजर आता है, मैं फिर ये कह रहा हूँ, एक आधे लोगों को इशू नजर आ रहा है कि 7% से 14 हो रहे हैं, बट स्टिल द गैप इज 36 से भी तो 14 ही होंगे। गैप तो अभी भी बहुत बड़ा है। हमने वो काम किया ही नहीं था आज तक कि हम मार्केट को एक्सप्लोर करते, डिफरेंट सेगमेंट्स पे जाते, बिकॉज मार्जिन मिल रहे थे सबको तो सब उसी पे काम कर रहे थे। मैकपैक पिछले 1.5 साल से सिर्फ इसी कोशिश में है कि ठीक है, यहाँ से मार्जिन मिले, थोड़े से मार्जिन को भले सेक्रीफाइस करना पड़े, डिफरेंट सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करो। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से यही है, पिछले 1 साल से इसी के ऊपर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेज भी किया है। बट आगे जाके अगर आप मुझसे पूछें, अच्छा थोड़ा सा एक्सपोर्ट, जितनी भी फिल्म मैन्युफैक्चरर उनके एक्सपोर्ट के नंबर भी बढ़, सो आगे जाके हमारे बिकॉज ऑफ द पैरिटी क्रिएट हो गई ना, इसमें थोड़ा सा मार्जिन अब बेहतर हुआ होगा सारे एक्सपोर्टर्स के लिए, वो वहां पर जा रहे हैं। सो पोटेंशियल इज देयर। यहाँ पर आगे हमारे पास डिमांड की भी बेहतरी है, सप्लाईज भी थोड़ी सी रिड्यूस होने की साइड पे जाएंगे, बिकॉज अगर आप एक्सपोर्ट, क्योंकि बैंकों की भी एक अपनी एक रिक्वायरमेंट आ गई कि आप कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करें फॉर द इंपोर्ट एलसीज। सो बहुत सारे जो न्यू जॉब कॉम्पिटिशन जो भी आपने
एंड मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान में अभी कोई काम भी नहीं हुआ। एंड 7 से 14% पे जाना ऐसे तो हमें चैलेंज लग रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि आगे जब आप, अच्छा अभी तक ये था कि मेरे पास हम 4 मार्केट में अगर कॉम्पिटिशन मौजूद थे तो हम चार ही लोगों को सेल कर रहे थे, तो 4 लोगों से हमें बड़ा अच्छा मार्जिन मिला। अब उन 4 लोगों के पास 8 लोगों के अगर इक्वल मटेरियल आ रहा है तो हमें उस 4 के साथ दूसरे 4 भी तैयार करने हैं। मार्केट डेवलप कब होती है? फॉर अस मार्केट नहीं, कभी ना डिमांड में डेवलप नहीं। मार्केट जब डिमांड ज्यादा हो कभी भी मार्केट डेवलप नहीं। मार्केट डेवलप होती है जब सप्लाई ज्यादा है तब होती है। बिकॉज जब डिमांड ज्यादा होती है तो उस पर आपको मार्जिन इतना डिसेंट मिल रहा होता है कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता कि किसी और तरफ जाके आप चैलेंज लें, रिस्क लें। आपको ये लोग इस सेगमेंट से प्रॉफिट मिल रहा है, डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, आप सिर्फ उसी को टैप करते हैं, वहां से प्रॉफिट लेते हैं और जबरदस्त, एवरीवन हैप्पी। जब सप्लाई ज्यादा हो तब you need to maintain the profitability, you need different segments. So it's actually the supplies जो मार्केट डेवलप करती है, और पाकिस्तान में पहली दफा अभी सप्लाईज ऊपर होने जा रही है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, पोटेंशियल मौजूद है, गैप मौजूद है, और आपको ट्रिगर भी मौजूद है कि जो ये डेवलप करवाए, और सब करने की कोशिश भी करें। बैकपैक इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। सो हम तो इस पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव R&D कर रहे हैं, सेगमेंट्स के लिए भी और प्रोडक्ट्स के लिए। The next question is, Tripack margins improved in this quarter, but your margins decreased by around 3%. Is there any reason for this? ट्राइपैक के मार्जिन अगर आप इस क्वार्टर के देखें, हमारे क्वार्टर में तो हमारा 3% इंक्रीज हुआ अच्छा देखिए, आप मार्जिन की बात कर रहे हैं तो ट्राइपैक के मार्जिन की थोड़ी मैं ब्रेक करता हूँ थोड़ा सा। पहले हम बात करते हैं जीपी मार्जिन की। जीपी मार्जिन ट्राइपैक के मुकाबले में मैकपैक के, चाहे वो हम क्वार्टर की बात करें चाहे हम 9 मंथ्स की बात करें, इन दोनों केसेस में हमारे मार्जिन उससे बेहतर है। As against 10.7, our margin is 13.6, and अगर हम quarter 9 months की बात करें तो as against 11%, our margin is close to 18%. So that's our better. आप अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन की, वो हमारे बेहतर है। सिर्फ द ओनली एरिया जहां पर हमारे उनका 5.2 है, हमारा 4.5 है, दैट इज द ऑपरेटिंग मार्जिन। उस ऑपरेटिंग मार्जिन में ना अगर आप, हम दोनों के नंबर मौजूद है, अगर आप दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो ये ना इम्पैक्ट जो आपको नजर आएगा, दैट इज 9 मिलियन इम्पैक्ट। हमारा जीपी मार्जिन इज बेटर, वन ऑफ द बहुत बड़ा फर्क 10.7 से 33% से ज्यादा का फर्क है, व्हिच इज 30% मोर देन ट्राइपैक मार्जिन। दिस इज जीपी। ओपी इज 0.7% लेस, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द 9 मिलियन इम्पैक्ट। अगर आप देखें मेरा 9 मिलियन से कम होता है, कि मेरा 5.2 मार्जिन के लिए मेरा 70 मिलियन होना चाहिए, व्हिच इज 61 मिलियन। And it's as I just mentioned कि this quarter में we are working aggressively on the different staff हमारे पास इस quarter में add होता है, जो आपको एज अ कॉस्ट नजर, ये अगले क्वार्टर में कॉस्ट नहीं है। मेरा स्टैप का ही खाली अगर इसके अंदर देखें तो मैं तो 9 मिलियन आपसे कह रहा हूँ, स्टैप इज फार मोर देन 9 मिलियन। स्टैप का कितना अर्निंग इम्पैक्ट होगा? मैं आपसे अभी आपके नंबर्स आ जाएंगे, इट्स मच मोर देन दैट। अगर मैं स्टैप को खाली एड्रेस कर दूं और किसी भी चीज को ना करूं तो मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत ऊपर चला। ऑब्वियसली उसने स्टैप इस क्वार्टर में इंप्लीमेंट नहीं किया, मैंने स्टैप इस क्वार्टर में इंप्लीमेंट किया, तो दैट इज देयर वन। सो मेरा वो मार्जिन सिर्फ 9 मिलियन का इम्पैक्ट है इस वक्त में। फिर उसके साथ आप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की बात करें, दैट्स आवर्स इज 7.9%, उसका 0.9%। मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करूंगा, हमारा 4.8%, उसका -0.2%। तो जस्ट मैं सिर्फ आपसे कहूंगा कौन सी क्वार्टर में मार्जिन बेहतर है, वो भी थोड़ा सा, इसके अलावा मैंने आपसे पूरी डिटेल आपसे शेयर कर दी। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैकपैक के सारे मार्जिन इज मच बेटर देन ट्राइपैक। Next question is from Mukeet 9, and we'd like to ask, sir. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो सर 2-3 सवाल है मेरे। पहला तो ये कि आपने बताया कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर प्राइसेस जो हैं वो वीक हुई हैं। उसका रीज़न मैं ये जानना चाह रहा था कि इज़ देयर एनी प्राइस वॉर सिनेरियो ड्यू टू राइजिंग सप्लाई इन द इंडस्ट्री, या सब प्लेयर कंसेंसस के साथ ही प्राइस कट कर रहे हैं ड्यू टू वीकर डिमांड? किस तरह का सिनेरियो है? देखिए जी, कंसेंसस के साथ कुछ भी नहीं। कंसेंसस के साथ हम इट्स कोई कार्टेल या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, इट्स नॉट द प्राइस वॉर एज वेल।
प्राइस वॉर ऐसा नहीं कि उसकी प्राइस है तो हम नीचे कर दें, उसकी प्राइस है तो हम नीचे कर दें, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। देखिए कभी कभी ना सिचुएशन मार्केट के डिफरेंट, मार्केट में बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं। इस दफा आई एम नॉट सेइंग, मैं सिर्फ डिस्कस कर सकता हूँ, मे बी ये रीजन हो या कोई रीजन हो। फॉर एग्जांपल अगर कंपटीशन ऐड हुआ है तो उसके ऊपर प्लांट भी ऐड हुआ है। प्लांट जब कमर्शियल होने जाता है, जब अलग अलग स्टेबल होता है, तो उसके अंदर यू नीड वर्किंग कैपिटल, you need cash flows, you need aggressive working capital. उस वक्त आपका इनफ्लोज नहीं होता, लेकिन आउटफ्लो डेली बेसिस, प्लांट इज नॉट अ स्मॉल डील, वो डेली बेसिस पे आउट होते हैं। आपको कई दफा कई डील्स मार्केट में इस किस्म में, मैं अपनी कंपटीशन के हवाले से बता रहा हूँ, मार्केट में इस किस्म की करनी पड़ती है कि थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस हम कर देते हैं, लेकिन हमें पेमेंट इमीडिएटली करते हैं। सो दैट आल्सो ड्राइव इन द मार्केट की सारी चीज, और ये मार्केट में हमेशा होता है, इट्स नॉट द न्यू, ये पहले भी हुआ है। दिसंबर में जनरली मार्केट प्रेशर में होती है, नंबर वन, बिकॉज दिसंबर में ना एक चीज होती है, आपका जो जितना भी है आपका नॉर्दर्न एरियाज, ये दिसंबर में एक्चुअली बंद होता है। स्लो कैसे सारे रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं, स्कूल्स ऑफ हुए होते हैं, तो जनरली थोड़ा सा मार्केट जनरली प्रेशर में वैसे ही होती है। वन, सेकेंडली जो ये गैस के इफेक्ट आए आपके दिसंबर में आना शुरू हुए, और इस गैस के इम्पैक्ट में भी बहुत सारे, क्योंकि खाली हमारे लिए नहीं है, ये गैस का इम्पैक्ट तो सब पे आया है। तो जो हमारा एंड यूजर, हमारा जो कस्टमर है, उसके पास भी गैस का बिल बहुत बढ़ गया है, तो उसने अपनी प्रोडक्शन भी स्लो की है। जब उसने अपनी प्रोडक्शन स्लो की, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट हमारे ऊपर भी आया है। सो ये सारी चीजें, जिसके इट्स नॉट द कंसेंसस प्राइस and it's not the price war, but yes, it's an economic या market के आप समझ लें forces है, जो price आप adjust कर रहे थे, जब ऊपर जाती है थोड़ी सी, तो आप खुद सारे without any consensus आप increase भी कर रहे होते हैं, जब pressure होता है तो आप decrease भी कर रहे होते हैं। So this is normal course of market, this is not कोई ऐसी बहुत बड़ा नहीं कोई situation। ठीक है। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन इज, आप लोग की जैसे प्रोडक्शन है वो मैं देख रहा हूँ 12,000 टन की है, पिछले साल भी इतनी थी, अभी भी आप लोगों की इतनी है, और आई थिंक कैपेसिटी भी आपकी 14-15 हज़ार के करीब है। तो आप मेंशन कर रहे थे कि हमें ग्रोथ पे जाना है, और आप लोग के जो डिस्पैचेस हैं वो लोअर एंड पे हैं, बट अगर मैं देखूँ तो यूटिलाइजेशन लेवल तो आपके मतलब शायद वन ऑफ द बेस्ट है इन द इंडस्ट्री, 80-85% के। आप ग्रोथ वाली चीज़ किस चीज़ को मतलब कह रहे थे, कहाँ से आप ग्रोथ लाएंगे? मैं आपको एक बात, आपको ये नजर आ रहा होगा 12,000, 12,000 का मतलब कोई ऐसे 9 मंथ को बात करें तो 16,000 बन जाते हैं। टेक्निकली यू आर राइट कि आपकी वो ज्यादा है नजर। तो एक होती है इसमें ना कैपेसिटीज, दो होती है, वन इज कॉल्ड डे ट्रेड कैपेसिटी एंड वन इज कॉल्ड ऑपरेशन कैपेसिटी। हम इस वक्त 100% ऑपरेशनल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हैं। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेम प्लेट कैपेसिटी एंड द ऑपरेशनल कैपेसिटी? नेम प्लेट कैपेसिटी इज एक्चुअली जब मशीन कोई भी बनती है ना, तो उसमें एक स्पेसिफिक माइक्रोन, फॉर एग्जांपल लेट्स से 30 माइक्रोन की जो एक साइज थिकनेस है, 30 माइक्रोन की फिल्म अगर 24/7 फॉर द मंथ चलेगी, तो वो एक 1250 टन फॉर एग्जांपल वो बनाएगी। हम इस वक्त 17 डिफरेंट SKUs पे काम करते हैं, डिफरेंट, जैसे जब वो 17 पे करते हैं, तो 17 में 30 माइक्रोन भी शामिल है, 20 भी शामिल है, 25 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, 15 भी शामिल है। माइक्रोन जितना रिड्यूस होता है, उतनी प्रोडक्शन कम होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 30 माइक्रोन की फिल्म बनाते हो, वो फॉर एग्जाम्पल वो 40 टन बनती है, 50 टन बनती है, 60 टन फॉर एग्जाम्पल बनती है, तो जो 10 माइक्रोन या 12 माइक्रोन होगी, वो 60 टन नहीं बनेगी, वो 35 टन बनेगी। बट मशीन जो है वो डबल भी चलाना पड़ेगा आपको, 60। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आई, बीच में कट हो गई थी। आप कट हो गई अगेन आवाज अब। जी आपने कहा था दिया, तो अब दोबारा उसको कर देता हूँ उसके लिए। जी, आपने बताया कि माइक्रोन अगर मैं 10 माइक्रोन का बनाता हूँ तो जी, मेरी मैं 10 प्रोडक्शन करता कम हूँ। होगी। देखिए अगर नॉर्मल में 60 टन अगर बन रहा है, 30 माइक्रोन अगर मैं कर रहा हूँ, एक मेरा SKU है, मैं कर रहा हूँ, तो 60 टन बना रहा है, तो जब मैं 10 माइक्रोन या 15 करूंगा, तो वो मेरी जो प्रोडक्शन उसके हाफ रह जाएगी। अब अगर मैं पूरे महीने की बनाता हूँ, और मेरी टोटल कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 1500 पैकेट की टोटल कैपेसिटी, अगर मैं पूरे महीने बनाऊंगा, तो पूरे महीने 24/7 मेरी मशीन चलेगी, लेकिन मेरी जो प्रोडक्शन होगी 750 मेट्रिक टन की होगी। एक्चुअली मैंने पूरा वक्त चलाया, पूरा 24/7, लेकिन आपको नजर, आपको जब देखेंगे तो आप कहेंगे आपने तो 1500 थी, आपने तो 750 टन प्रोड्यूस किए। बट वो एक स्पेसिफिक SKU को चलाने की नेम प्लेट कैपेसिटी होती है। आप जितने एक SKU से दूसरे SKU में आप जाते हैं, तो फिर अगेन यहाँ से इसका टाइम भी होता है, एक फिल्म से एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाने का।
सो हम इस वक्त अगर आप मुझसे बात करें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मैक पैक पिछले 4 सालों में सिवाय मेंटेनेंस के लिए अगर कभी बंद होती है, ऑब्वियसली मशीन इसको हमने मेंटेनेंस के लिए बंद भी करना है, वो बंद होती है, इसके अलावा 1 मिनट के लिए बंद नहीं होती। जब 1 मिनट के लिए बंद ही नहीं होती तो कैपेसिटी देयर इज नो कैपेसिटी अवेलेबल। सो इस ठीक है ऑपरेशनली कैपेसिटी हम कंप्लीटली इस वक्त वी आर एट ऑपरेशन 100% ऑपरेशन कैपेसिटी। सही। तो सर ये अगर तो हमें आपको देखना दूसरी है बात कि आपकी मैकपैक में ग्रोथ कहाँ से आएगी सिंस ये 100% देखिए यूटिलाइजेशन बहुत पे सीधा है? बात है। जी उसमें ना दो रीजन दो तरीके। एक, आप अपने आप को ऐसे तक ग्रेजुअली शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स कमोडिटी फिल्म टू दूसरी फिल्म। अगर आप मेरे तीन सालों को भी देखें तो 2.5-3 साल से मेरे तो प्रोडक्शन नंबर तो सेम मोर सेम आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे टॉप लाइन नंबर देखें वो सबसे चेंज हो रहा है। इस साल भी चेंज हुआ है। टारगेट ये है कि हम नंबर 1 टारगेट क्या है कि हम अपने आप को शिफ्ट करें टुवर्ड्स नॉर्मल कमोडिटी फिल्म, जनरल फिल्म मार्केट की है, उससे वैल्यू एडेड फिल्म। उससे मे बी कि अगले साल में जाके प्रोडक्शन की थोड़ी सी और शॉर्टेज कम हो सकती है, लेकिन हमारा इंशाल्लाह ताला प्रॉफिटेबली एंड द टॉप लाइन दोनों बढ़ेंगे। तो वो एक तो आपकी ग्रोथ वहां से आएगी बिकॉज हमारी पूरी वो है एफर्ट ये कि अपने आप को वैल्यू एडेड में जितना कन्वर्ट कर सकते हैं वो करें। सेकेंडली ऑब्वियसली बहुत सारी मैंने अभी आपसे कहा पिछले क्वेश्चन के जवाब में कि मैनेजमेंट इज वर्किंग ऑन द डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज एज वेल। We are working on that. Inshallah, we will share with the stock exchange as well on the जब कुछ इसको फाइनल हो जाएगी और जिसको वो अप्रूव हो जाएगी, so वो ग्रोथ आपको नजर आएगी हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन एंड सेगमेंट स्ट्रेटजी। और बहुत सारे शायद एक और चीज भी है, बहुत सारे सेगमेंट ऐसे जो आज तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए। बहुत सारे मैंने भी आपसे कहा जो ये गैप इतना बड़ा है 7% से 35% के दरमियान के, इस गैप के अंदर भी तो बहुत अच्छी आपको प्राइसिंग मिल सकती है, हम उसको टैप करेंगे। सो दैट्स ऑल्सो ग्रोथ डज नॉट मीन कि आप प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाए, वो ग्रोथ है। ग्रोथ इज कि आपकी टॉप लाइन आपकी बॉटम लाइन अगर वो इंक्रीज कंटिन्यूसली कर रही है, साथ आप अपने डाइवर्सिफिकेशन को फोकस कर रहे हैं, तो दैट्स ग्रोथ। सो इंशाल्लाह ताला आप यूज इंशाल्लाह ताला वंस फाइनलाइज होती है यू विल बी थ्रू पीएसएक्स आपके पास में न्यूज़ आ रही है इंशाल्लाह। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन ओनली। वो ये कि आपके जो लास्ट क्वार्टर के मार्जिन आए 13% आए, एंड यू मेंशन कि आप लोगों के एक्सपोर्ट्स में मार्जिन बेहतर में। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 13% आपके टोटल है, तो उसमें लोकल के मार्जिन कितने होंगे और एक्सपोर्ट के कितने होंगे, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि एक्सपोर्ट्स के मार्जिन पहले कितने थे और अब कितने बेहतर हुए हैं? तो इसमें मैं क्लियरली बता दूं, कभी अगेन एक्सपोर्ट इज नीड ऑफ द डे, बट अगर आप इनको लोकल मार्जिन से कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट मार्जिन आर नॉट एज गुड एज द लोकल मार्जिन। बट अगर आप एक्सपोर्ट का फुटप्रिंट आज बढ़ाना नहीं शुरू करें, अगर मैं दरअसल थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, 3-4 साल पीछे चले तो मैं शायद 5 साल पीछे चला जाता हूँ। बैंक पैक की हमने जिस पर ऊपर टॉप लाइन बढ़ानी शुरू की थी तो हमारे मार्जिन बहुत गिर रहे थे। सो हमने उस वक्त जब डिस्कस करते थे तो हम ये करते थे कि हमारा इस वक्त टारगेट पूरा है कि हम डिफरेंट मार्केट्स को टैप कर सकें। आप जब मार्केट में किसी डिफरेंट कंट्री को हिट करने जाते हैं तो वहां पे आपको थोड़ी सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी काम करना होता है, आपको अपने मार्जिन कम करके उस इंडस्ट्री को उस मार्केट में एंटर होना होता है। दैट्स ऑलवेज एन स्ट्रैटेजी। वो ये नहीं है अगर आप खाली स्टिक रहते हैं अपनी हाई मार्जिन वहां तो कभी भी आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। तो आपने कोशिश साथ ये करनी कि आप उस मार्केट में एक्सप्लोर करें जहाँ पे मार्केट थोड़ी सी कम आप एंट्री करें। हमने पहले 5 साल में किया। अब इस वक्त अगर आप एक्सपोर्ट में जो हमारी एंट्री करें, देखिए एक्सपोर्ट में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो कंपटीशन है ना वो ट्राई पैक आई पैक ये नहीं होते। वहां पर हमारा कंपटीशन होता है सारा इंडिया, सारा इंडोनेशिया, सारा चाइना। वेरी डिफिकल्ट कॉल, बट हमें वो फुटप्रिंट्स ऐड करना है बिकॉज फ्यूचर में हमें ये नजर आता है कि लोकल मार्जिन कम हो सकते। अगर लोकल मार्जिन कम हो सकते तो इज इट गुड स्ट्रैटेजी कि कम से कम हम कम मार्जिन में अपने फुटप्रिंट्स आज ही बढ़ा लिए। इसमें ना दूसरा ये डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है कि मार्जिन कम, मगर इसकी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी है। यू नो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की आपकी जो कॉस्टिंग है वो कंपैरेटिवली इसमें कंपेयर विद द लोकल बैंक की जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है उससे काफी कम है। नंबर 2, आपको ड्यूटीज का रिबेट मिलना शुरू हो जाता है। नंबर 3, इस पे आपको बैंक सोर्स आपकी और ऊपर हो जाते हैं कि आपकी इंपोर्ट की एसेस और ज्यादा बेहतर तरीके से होती है और ऑनेस्टली स्पीकिंग आप कंट्री के लिए प्रोडक्ट। चौथी चीज ये होती है जिस वक्त आप एक्सपोर्ट, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूं, खाली ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल मिसाल दे रहा हूं। आज मेरे पास मार्केट में आप कहते हैं 10,000 टन आ रहा है इसलिए प्राइस गिर सकती है। इस 10 में से अगर मैं 5 एक्सपोर्ट कर पाता हूँ मेरी 5 के मार्जिन कम हो जाएंगे, लेकिन जो लोकल 5 होगा उसके मार्जिन बढ़ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ सप्लाई कम हो जाएगी। सो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रैटेजी कि आप जितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। वहां पर अगर आपके कम मार्जिन इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट है, लेकिन आपको उससे लोकल मार्जिन आपके बेहतर होना शुरू होता है जो कि आपको सिर्फ एक्सपोर्ट में नहीं नजर आ रहा है। वहां आपको लग रहा है कम है, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट जो है वो आपकी बेहतर होना शुरू। मार्जिन 12 लोकल से कम है। ये अगर मैं वन लाइनर जवाब दूं तो वो ये था।
You talked about your strategy to maybe tap into some new markets. Can you please elaborate on what those markets may be? Because you mentioned that North America and Europe is still. It's not only the North America and Europe, obviously these are the international markets. But I also mentioned that Pakistan's plastic consumption is 70, and which is in the case of developing countries like Pakistan is 35 kg. So अगर 35 kg पाकिस्तान में 7 kg है तो इसका मतलब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट अब आना शुरू हुआ है कि हमारी सारी चीजें हैं वो ब्रांडिंग की तरफ जाती है। इससे पहले आपको दाल चना हर चीज जब आप जाते हैं आपको वो एक शॉपर लेता था उसके अंदर वो यूज करके डाल देता। अब हम जाते हैं जिस हम ज्यादातर सुपर मार्केट करते हैं वहां पे जब जाते हैं तो आपको हर चीज पैक। अब अगर आप देखें तो आपको सारे हर आपकी फ्रोजन फूड्स पाकिस्तान में तो भी फ्रोजन का कॉन्सेप्ट फ्रोजन के लिए बेस्ट इसी तरह से आप फ्रोजन के अलावा जहाँ पे फ्रेश रखने की बातें आ रही है वहां पर बात करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पहले आप एक साल पहले 2 साल पहले अगर आप लोगों को भी याद है कि फ्रोजन फूड्स में बहुत ज्यादा अब आप एक आध तो मिलता था तो मिलता था अब आपको बहुत सारे फ्रोजन फूड्स पहले आप लोग प्रेफर करते थे हम चिकन या बीफ है जो भी चीज हम देते थे वो देते थे अब जो भी आपको मिलता है वो रैप शुरू करता है। सो ये जो मार्केट ऐड हो रही है हमने इसको यूपी भी आज से 40 इयर्स पहले पाकिस्तान में 45 इयर्स पहले पाकिस्तान में कोई जनता नहीं था। मैकपैक अल्हम्दुलिल्लाह नॉट ओनली द पायनियर बल्कि यहाँ पर इससे पीओपी की मार्केट डेवलप की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पीओपी की मार्केट यहाँ पर मैच्योर स्टेज पर पहुंच चुकी है। इशू इज नॉट कि हमारे पास इंटरनेशनली टैप करने के साथ हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हमने ये जो देखना सिर्फ ये है 35 minus 7 is equal to 28%। ये 28% की मार्केट हमने कैसे डेवलप करी हमने कैसे छी इसके अंदर मार्जिन भी बहुत अच्छा है। हम क्यों लड़े उस 7% के पाई के लिए इस 28% के पाई के ऊपर हम क्यों ना पकड़े। ठीक है फिलहाल मीनवाइल आप एक्सपोर्ट करें साथ ही मार्केट डेवलप करें। Honestly speaking, it's a huge potential. We are working because this last 1 year we are working on that one. So it's a huge potential, 28%, 100% आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी फिर भी 28% आपको पूरा नहीं। साथ आपका बोलो कि सब भरपूर तरीके से काम करें एग्रीकल्चर एंड यू नो एग्रीकल्चर कोई शेल्फ लाइफ बढ़ाने की द बेस्ट वे। सेकेंडली अगर आप देखें तो हम एक और चीज पे इसमें बहुत ज्यादा काम करें दैट इज आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर से हमारा क्या काम आईटी सेक्टर से 2 चीजें एक नंबर 1 मार्केट में कैश सर्कुलेशन बहुत बढ़ना शुरू और ये जो पाकिस्तान की यूथ है ना 60% ऑफ टोटल हमारी यूथ ये फूड पैंडा सॉर्ट ऑफ थिंग। अब आप पहले देखिए होटल पे जाते थे एक बॉटल्स के अंदर केचप होता था वो उसपे अब आप फूड पैंडा के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हर एक के साथ तो केचप के छोटे-छोटे साशे जो है पहले कितने यूज होते थे आज के अंदाजा ये मार्केट है एंड ये इसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट मार्जिन्स पहुंच चुके हैं। सो पाकिस्तान में भी बहुत टाइम लगेगा 6 to 8 months है व्हिच इज अ चैलेंजिंग टाइम बट 6 to 8 मंथ में जो तैयार हो गए जिसने आरएनडी कर दी फ्यूचर इज उसी का। मैकपैक इज नॉट द ओनली द इंटरनेशनल साइड इज द लोकल सेगमेंट जिसने आपका फ्रंटियर में बहुत काम अभी होना बाकी पूरा केपीके आपका बहुत बहुत केपीके कराची में बहुत कुछ बाकी है कराची में कुछ नहीं हुआ तो अभी बहुत गुंजाइश है इंशाल्लाह मार्केट्स आपके पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से एक्सप्लोर कर अच्छा इसके अलावा you mentioned that these important points fueling towards a strategy of adding value added products. So उसकी financing going to depend on debt because the company doesn't have. Sorry, we should value added products. उसकी financing के लिए देखिए जो थिंग्स value added products हम currently जिस तरह से काम कर रहे हैं we are just switching from the current commodity products to value added products. There is no financing required for that. We are just switching our existing products line towards the value added products. So for that one another get last yes for the diversification which I just discussed उसके लिए हम definitely according to the project size हम financing की तरफ जा रहे हैं कि लोकल कोस्ट पे मैंने डिस्कस किया कि डिविडेंड स्ट्रैटेजी भी हम देख रहे हैं कितना डिविडेंड से हमने कितना कंपनी अपने कैश फ्लो बिकॉज़ वहां कंपनी सारा भी नहीं करना चाहेगी बिकॉज़ वहां डिविडेंड भी है हमने डिविडेंड भी देना है। सो वो स्ट्रैटेजी हर प्रोजेक्ट होगी कितना आपने बैंक से फाइनेंसिंग करनी है कितना आपने अपने कैश फ्लोस यूज करने हैं बिकॉज़ बैंक की फाइनेंसिंग जो गवर्नमेंट कह रही है कि 7% रिड्यूस हो जाएगा अगर वो 15-16% पे आ जाता है तो टेक्निकली वो 16% आपको पड़ेगा 9% इफेक्टिव टैक्स रेट आपका 9%।
So वो भी हो सकता है but ये तो प्रोजेक्ट चलेगा बिकॉज अगर एक प्रोजेक्ट साइज कुछ छोटा है तो उसके लिए फाइनेंशियल शेयर ना दिया लेकिन अगर प्रोजेक्ट साइज बड़ा है इसका बता उसके लिए फाइनेंशियल जा रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे मुझे टैक्स बेनिफिट भी होने पे मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट बट वो आज की डेट में मैं नहीं बता सकता एंड यस फॉर द स्विचिंग टू द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नो फाइनेंशियल Last analyst. Share buyback. What is share buyback? Share buyback is also an investment opportunity. As I mentioned right now, our share price is almost 50 to 54% of the total book value, which in the case of the target is 80%. So share buyback is one ये investment option है जिसका दूसरे investment option के साथ comparison because for that purpose you need the work you need the cash and obviously you need for अगर हमारे पास अगर हमें नजर आ रहा है for example I'm just एक hypothetical discussion कर रहा हूँ कि for example यहाँ 20-30% मेरा increase आ जाएगा शेयर की प्राइस बट अगर मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है जहाँ मैं इससे ज्यादा बेहतर ले सकता हूँ then why not why should I go for the share buyback because हमने अपने पूरे शेयर होल्डर्स की प्रॉफिट नॉट ओनली द शेयर होल्डर्स बल्कि अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है ऑल द स्टेक होल्डर्स और इस इकोनॉमी में भी अपना रोल प्ले करना वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से होगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से होगा जो कि हमारा मेन फोकस है यस साथ कंपेरिजन शेयर बाजार पे डेफिनेटली पिछले साल भी हुआ है इस साल भी होगा वो हमेशा कंपेयर होगा अगर अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उसके पार पर है उससे बेहतर है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर दैट ऑप्शंस जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज I don't think there are any more questions. If there are, you can write them in the chat once again. You can anytime send a question on email as well. You have the case with the email address. Yes. That's it from the question side. Thank you, Mike. Thank you, Mr. Najim. Thank you. Just one last thing. Thanks a lot. Thank you very much for your coming. And because you all are from very prestigious organizations, we just request कि obviously आप सब लोग मैथपैक को देखिए मैथपैक को एनालिसिस करें और जहाँ पर you people think कि आप हमें suggest कर सकते हैं improvements, please do suggest. We always welcome the suggestions from आप सब analysts side से because मैथपैक is not first just suggest. You think if yes, please do suggest. Thank you very much. And special thanks to Gateway's team. Thank you very much, Gateway's. The organizing. Thank you very much. Thank you everyone.